who is going to talk to us about power of compounding and mutual funds. This is a subject in which we should all be deeply interested because it's by creating a passive income by investment into a diversified platform called as mutual funds. Our speaker, Mr. Maqsood Memon, has spent almost his entire career in the field of commerce and finance in places like St. John College of Humanities and Sciences, SDSM College, Palghar. He has also delivered guest lectures and was a part of various seminars held in Viva College, JDBIMS Institute, etc. He is an award winner from Maharashtra Class Owners Association in the category Special Recognition Award for Sanjari Commerce Classes. He has co-authored 6 books of BCom course of University of Mumbai in Nirali Parakshan. He has also published 2 research papers in national conference and 1 in international conference. He has successfully completed GSET in Commerce, MCom in Accounts and Finance, MCom in Management, and currently Sir is pursuing LLB from SDSM College. He was also an NSS Programmer Officer for 3 years in SJCS Institute, has worked with great enthusiasm in rural areas of Palghar district. He is founder of Humanity Foundation Palghar, member in Arya Krida Mandal, member of Tanzim Trust, member of AIMJF Youth Wing, member of Palghar Football Club, member of WMO Youth Wing, member of AMP, which is a social organization. We are lucky to have Maqsood Memon sir with us to enlighten us with the knowledge of finance. Please join me in giving a warm welcome, a big round of applause. I should request to begin the session. Good morning, one and all. Good morning, everyone. Good morning, sir. Okay. Let's begin with the session. I'll talk about the mutual funds. Now, can you tell me what is mutual fund? Do you have any idea? Before coming here, you would have thought that हम म्यूचुअल फंड के बारे में जा रहे हैं सीखने के लिए. So, do you have any idea about mutual fund? What is mutual fund? It is an investment. See, I just want that हम इस सेशन को थोड़ा इंटरैक्टिव रखें, so that थोड़ा आपका भी यहाँ पे फायदा होगा. आपके जो भी डाउट रहेंगे, that will also be cleared. And मैं जितना मुझे भी देना है, मैं और भी ज्यादा से ज्यादा दे सकता हूँ आपको. ठीक है? So after this lecture, you will be able to understand that what are mutual funds, why to put money in mutual funds, and history and the futures of mutual fund. So we are going to talk about these things. और इस लेक्चर के बाद आपको ये सारी चीजें, इस सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे. So before understanding the term what is mutual fund, I would like to put a light on some basic concept, that is the company. What is company? Can anyone tell me? क्या होता है कंपनी? Are you all from finance background? कॉमर्स बैकग्राउंड से हो आप लोग? ठीक है, कॉमर्स बैकग्राउंड है, फाइनेंस बैकग्राउंड है. ठीक है. कंपनी क्या होता है? क्या होता है कंपनी? एनी लैंग्वेज यू कैन टेल मी. क्या होता है कंपनी? व्हाट इज कंपनी? यस. प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन जो कंपनीज एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड है. वेरी गुड. सो कंपनीज एक्ट 2013, पहले 1956 था, फिर अभी अमेंडेड हुआ 2013 के अंडर. ये एक फॉर्म होती है कंपनी सेक्शन 10 के अंदर, और वो क्या करती है? प्रॉफिट कमाती है. तो कंपनी एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, और उनका मेन मोटो होता है पैसा कमाना. नाउ पैसा कमाने के लिए पैसा चाहिए. सो हियर वो लोग पैसा कैसे इकट्ठा करते हैं? हाउ दे जनरेट दी मनी. किस तरीके से पैसा इकट्ठा करते हैं कंपनी को चलाने के लिए? कैन यू टेल मी? शेयर्स इशू करते हैं. शेयर्स इशू करना क्या होता है? आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग. क्या होता है? क्यों करते हैं वो लोग? क्योंकि उनको पैसा चाहिए. कहां से लेते हैं वो लोग पैसा? पब्लिक से. फॉरेन इन्वेस्टर, डोमेस्टिक इन्वेस्टर. वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया. डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स होते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, हमारे जैसे लोग होते हैं इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स. ठीक है, तो हमसे पैसा जनरेट करते हैं. अब कंपनी को तो बहुत बड़ा अमाउंट लगता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं कि लाइक कंपनी को 5 करोड़ रुपीस की नीड है. 5 करोड़ रुपीस. ठीक है. तो अब 5 करोड़ अगर कंपनी ने बोला हम लोग को 5 करोड़ की नीड है, तो एक पर्टिकुलर पर्सन वो 5 करोड़ अमाउंट नहीं दे सकते. सो उस 5 करोड़ को क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा. दे विल फॉर्म अ पार्ट ऑफ दिस 5 करोड़. इसकी क्या करेंगे? छोटे 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 पार्ट्स करेंगे.
और उस पार्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? शेयर्स। ठीक है, तो सपोज इस एग्जांपल को थोड़ा सा आगे बढ़ाते, मैंने इसको एक पार्ट का मैंने 10 रुपए सोचा है। कितना सोचा है? मतलब हर एक छोटा गरीब इंसान भी, उसको अगर इस कंपनी में पैसा लगाना है तो वो 10 रुपया इन्वेस्ट करके एक शेयर उस कंपनी का खरीद सकता है। करेक्ट? सो कितने शेयर हो जाएंगे? 50 लाख। 50 लाख शेयर हो जाएंगे। तो अभी आपको ये तो पता चल गया कि शेयर क्या होता है। ठीक है, मुझे वही बेसिक टर्म आपका क्लियर करना था कि शेयर क्या होता है। सो पब्लिक, अब यहां पे सवाल ये आ जाता है कि पब्लिक क्यों पैसा लगाएगी उस कंपनी में? वाई वी शुड पुट अवर मनी इनटू द कंपनी? क्यों पैसा लगाते हैं हम लोग? बिकॉज सर हमको सर्टन रिटर्न्स मिलते हैं, सर्टेन रिटर्न्स मिलते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। तो कंपनी में से हम लोग को रिटर्न्स मिलता है और डिविडेंड के फॉर्म में मिलता है, बोनस शेयर मिलते हैं। हमारा कैपिटल अप्रिसिएशन होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। और आजकल के जो लोग हैं ना, हमारे जो यूथ है या फिर 30s एज वाले हैं, वो लोग इधर ज्यादा ध्यान देते हैं, वो लोग इधर ज्यादा ध्यान नहीं देते। Why they pay attention to this? I'll tell you why. मैं एक मेरा ही एग्जांपल बता रहा हूँ, बाकी लोगों का बाहर का एग्जांपल नहीं बताऊंगा। सुजलॉन एनर्जी चेक कर लेना, ठीक है आप लोग। सुजलॉन एनर्जी करके एक शेयर है, सॉरी सीजी पावर करके एक शेयर है, ठीक है, मैंने बताया भी है कुछ मेरे बच्चों को। वो शेयर 6.5 रुपए मिल रहा था, 6 रुपीज 50 पैसे। कुछ एक साल 1 महीने पहले, मतलब 13 months बिफोर, द शेयर वॉज, पर शेयर प्राइस वॉज 6 रुपीज एंड 50 पैसे। आज उसकी करंट प्राइस है यू कैन जस्ट इमेजिन हियर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे मेजरली क्या करते हैं, हमारा कैपिटल अप्रिसिएशन। मैंने आज अगर फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे 1000 शेयर खरीदे होते, मतलब अराउंड 6500 का इन्वेस्टमेंट होता, आज वो कितना बन जाता? करेक्ट? 1,90,000 ही, बराबर ना? कैलकुलेशन में थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता हूँ, बराबर ना? 1,90,000। ये कैपिटल अप्रिसिएशन के लिए लोग इन्वेस्ट करते हैं। अब यहां पे इज देयर अ रिस्क इन पुटिंग अ मनी इनटू दिस कंपनी? रिस्क फैक्टर है कि नहीं? 50-50 का रिस्क फैक्टर है कि नहीं? ये ऐसा भी तो हो सकता कि 3 रुपए हो जाता था, 3 रुपए 50 पैसा हो जाता था, मतलब 3 रुपए से चांसेस है ना, भरोसा थोड़ी है, कुछ भी हो सकता है। कोई भी डिसीजन आ सकता है कंपनी के लिए, या कंपनी के ऊपर कुछ सेबी ने कुछ रूल्स लगा दिया, या फिर कंपनी का सेल नहीं हो रहा है, या कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा पा रही है, या कंपनी का डेप्ट बढ़ गया है। ये सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं शेयर प्राइस को। तो शेयर प्राइस कम भी तो हो सकती है। एक शेयर बताता हूं, अभी एक पॉजिटिव फैक्टर बताया, एक नेगेटिव फैक्टर भी बताता हूं। ये बहुत आपने नाम सारे सुना रहेगा अगर आप स्टॉक मार्केट में हो तो, इसका यस बैंक। ये शेयर कुछ अराउंड 200 पे चल रहा था, मैंने इसको 70 में बाय किया, एवरेज करके 33 पे लाया, आज वो 13 रुपए चल रहा है, 13 रुपीज है। मैं कुछ 4,500 उसमें लॉस में हूँ। तो देर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट यहां पे आइदर विन और आइदर लूज। करेक्ट? करेक्ट और नॉट? ओके। नाउ जब मैं स्टॉक मार्केट में, मतलब पहले मैं बहुत पूरा दिन उसमें रहता था, कोविड था, पूरा दिन उसके अंदर ही स्टॉक मार्केट सुबह में चालू किया कि उसके ऊपर देखते रहना कैसे फ्लक्चुएशन हो रहा है, क्या हो रहा है, बहुत कुछ किया। नाउ आई डोंट हैव अ टाइम, आई एम गिविंग माय एग्जांपल। नाउ आई डोंट हैव अ टाइम, ठीक है। क्यों टाइम नहीं है मेरे पास? क्योंकि मेरा सुबह में लेक्चर्स रहता है, कॉलेज रहता है, सो आई एम नॉट एबल टू लुक इनटू द मार्केट एवरी डे। सो आई डिसाइडेड टू शिफ्ट माय इनकम टू म्यूचुअल फंड्स। Whatever my investment I am doing to mutual fund. Why mutual fund? Why mutual fund? Because mutual fund क्या करता है, हमारे जो अमाउंट को है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 1,000 को है, वो उसको अलग अलग कंपनीज में, सपोज 10 पार्ट्स में 10 अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। और वो कौन करता है? फंड मैनेजर करता है। द फंड मैनेजर हु इज अ वेरी गुड, लाइक वेरी इमेंस नॉलेज उनके पास है रिलेटेड टू फाइनेंस फील्ड। चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, CFA होते हैं, CMA होते हैं वो लोग, ठीक है, अच्छा खासा 10-12 साल का एक्सपीरियंस रहता है। सो दे इन्वेस्ट
दे आर दी फंड मैनेजर्स, मतलब उनके पास अच्छा खासा नॉलेज रहता है और उस पैसे को वो लोग क्या करते हैं, एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाते हैं वो लोग। डाइवर्सिफाइड मींस वो लोग अलग 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 कंपनी में क्या करते हैं, हमारे पैसा इन्वेस्ट करते हैं। करेक्ट? अलग अलग कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने से क्या हो जाएगा, व्हाट विल हैपन, क्या हो जाएगा, रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाएगा। रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाएगा। 10 में से 8 कंपनी तो परफॉर्म करेगी, 8 तो करेगी ना, कम से कम 8 कंपनीज आर गोइंग टू परफॉर्म। 2 डूबेगी, चलो मुझे तो लगता है 2 भी नहीं डूबेगी, 10 के 10 ही कंपनी परफॉर्म करती है, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, इतने अच्छी तरीके से फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं कि उनको पता रहता है कि ये कंपनी का डेप्ट नहीं है, ये कंपनी का फ्यूचर है आगे, ये कंपनी का प्रोडक्ट सेल होने वाला है। जैसे कि अभी हम लोग बहुत सारी बातें करते हैं कि अभी ईवी सेक्टर बहुत फॉर्म में आने वाला है। ईवी सेक्टर वाई, बिकॉज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर कमिंग इनटू द मार्केट। आप देखो मुंबई में बेस्ट बसेस है, टाटा की इलेक्ट्रिक है, ठीक है, हर जगह पे, तो उनका क्या होने वाला है, सेल होने वाला है। हम लोग इस तरीके से हम लोग को लॉजिक लगाना है कि फ्यूचर में किस चीज का डिमांड आने वाला है, तो उस सेक्टर के ऊपर पैसा लगाया जाए। ठीक है, पैसा अगर आपका 100 रुपए घर पे पड़ा है 5 साल पहले, तो आज अगर आप उस पैसे को निकालोगे तो 100 ही रुपए निकलने वाले हैं। करेक्ट और नॉट? लेकिन अगर उस 100 रुपए को अगर आपने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया होता या एफडी भी रखा होता, तो एफडी में भी आपको 6 रुपए 6% के हिसाब से 6 रुपए 30 रुपए करके आपको मिलता था, और आपको म्यूचुअल फंड्स देगा 15% रिटर्न, 14 to 15% रिटर्न दे आर गोइंग टू गिव। स्टॉक मार्केट कैन गिव यू मोर देन 100% रिटर्न। आपका 100 रुपए का डबल हो जाएगा, 200 हो जाएगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल भी दूंगा मैं, लेकिन यहां पे एक एग्जांपल चलो मैं बता देता हूं आपको कि लाइक अभी रिसेंटली मैंने एक आईआरसीटीसी का शेयर खरीदा था। अभी सर से मेरी बात हो ही रही थी, ठीक है, तो एक आईआरसीटीसी का शेयर खरीदा मैंने, ठीक है, वो शेयर मैंने 2046 रुपए का खरीदा, ठीक है, एग्जैक्ट प्राइस ही बता रहा हूं आपको मैं, ठीक है। स्टॉक क्या हो गया, वो स्प्लिट हो गया। स्टॉक स्प्लिट पता है, समझते क्या होता है, व्हाट इज स्टॉक स्प्लिट? ठीक है, जब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होता है ना, तो एक शेयर का फेस वैल्यू डिसाइड किया जाता है कि ये शेयर का फेस वैल्यू रहेगा, ठीक है। उस फेस वैल्यू को क्या करते हैं लोग, कम कर देते हैं, ठीक है। एक शेयर 10 रुपए का है तो 2 शेयर 5 रुपए का है ना, तो उन्होंने यहाँ पे क्या किया, आईआरसीटीसी ने स्टॉक स्प्लिट किया। मतलब मेरे पास 5 शेयर थे, वो हो गए 25 शेयर्स, 1:5 के रेशियो में स्प्लिट कर दिया। मतलब जिसके पास 1 शेयर होगा, ठीक है, वो लोग क्या करेंगे, उनको कितना मिलेगा शेयर, 5 शेयर, 5 बन जाएगा वो 1 का। तो मेरे पास 5 शेयर थे, वो 25 हो गए। अभी आप बोलोगे सर मतलब 2046 रुपए के सर 25 शेयर हो गए? नहीं, अमाउंट भी डिवाइड होती है ना यहाँ पे। नंबर ऑफ शेयर्स अगर आपके 5 से 25 हो रहे तो यहाँ पे 2046 से आपका क्या हो रहा है यहाँ पे, तो मेरा 1 शेयर का प्राइस कितना हो गया। अब बोलेंगे यहाँ पे सर बेनिफिट क्या हुआ, यहाँ पे बेनिफिट कुछ नहीं हुआ। 2046 से मेरा क्या हो गया, यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट होके 5 के 25 शेयर हो गए, मेरा इन्वेस्टमेंट उतना ही है, ठीक है, और 408 हो गए। यहाँ पे क्या करती है आईआरसीटीसी कंपनी ने, जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स है उनको अट्रैक्ट कर दिया कि 2046 रुपए का 1 शेयर खरीदना हर एक के बस की बात नहीं होती। सो उन्होंने इन्वेस्टर्स को क्या कर दिया, अट्रैक्ट किया छोटे इन्वेस्टर्स को। छोटे इन्वेस्टर्स ने बाय किया, देखा कंपनी का प्रोस्पेक्ट क्या है, ठीक है, क्योंकि आईआरसीटीसी ऐसा कंपनी है, वो मोनोपोली है उसका। वाइल्ड टेल यू मोनोपोली। आप मुझे बताओ, आप स्टेशन आप बुकिंग करते हो ट्रेन का, कौन से ऐप पे से करते हो? यही ऐप है, कोई है और दूसरा ऐप? ठीक है, फूड वगैरह जो मिलता है ट्रेन में, मैं स्टेशन की बात, स्टेशन पे भी आईआरसीटीसी के कैंटीन है, लेकिन फूड जो मिलता है ट्रेन में आईआरसीटीसी कंप्लीट मोनोपोली है। ये मतलब अभी मैं आपको ऐसा बोल रहा हूँ, लेकिन आप लोग मेरे ऊपर ट्रस्ट करके पैसा मत डाल देना सर, 2-3 लाख रुपए डाल देता हूँ मैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, ठीक है, बता देता हूँ। लेकिन ये कंपनी मेरे ओपिनियन से, मेरे सजेशन से, ये कंपनी आई टेल यू इट विल गो। ये जो शेयर प्राइस आपको दिख रहा है अभी फिलहाल, अभी करंट प्राइस इसका चल रहा है, ठीक है, ये कंपनी आराम से 1500-2000 की वैल्यू की है। इसका जो वैल्यू है, कीमत है 1500 से 2000 है, ठीक है। तो अभी वो बात अलग है, यहाँ पे मैंने 408 रुपए का मैंने शेयर हो गया मेरा, अभी करंट प्राइस 875 हो गए। मैंने क्या कर दिया, सेल किया, सेल करके मुझे एक अराउंड 110% का रिटर्न मिला, बराबर ना, सीधा डबल हो गया ना पैसा। सो आई एम नॉट टेलिंग यू दैट शेयर्स इज नॉट गुड, इन्वेस्टिंग इनटू द शेयर इज नॉट गुड, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन शेयर में इन्वेस्ट करना है तो फंडामेंटल एनालिसिस के लिए उतना टाइम चाहिए आपके पास, हर एक स्टॉक के बारे में आपको कि वो डायरेक्टर्स कौन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन है,
स्टॉक आगे कंपनी के प्रोडक्ट का क्या फ्यूचर है, कंपनी की मार्केटिंग कैसी है, कंपनी के एम्प्लॉयज खुश है या नहीं, बहुत कुछ देखना पड़ता है, फंडामेंटल एनालिसिस करना है तो स्टॉक के बारे में। सो उतना टाइम हम जैसे लोगों के पास नहीं रहता है, ठीक है। एज अ स्टूडेंट यू माइट हैव टाइम, यू कैन इन्वेस्ट इनटू द स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट नॉट ट्रेडिंग। तो हम लोग जैसे लोग क्या करते हैं ना, वी शिफ्ट आवर इनकम टू म्यूचुअल फंड्स। तो म्यूचुअल फंड्स में क्या हो जाता है, व्हाट हैपेंस इन द म्यूचुअल फंड्स, हमारा जो पैसा है वो क्या हो जाता है, 10 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, करेक्ट, 10 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। सो म्यूचुअल फंड एग्जैक्टली कैसे काम करता है, ठीक है, आई विल शो यू इन अ डायग्रामेटिक फॉर्म, तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि किस तरीके से म्यूचुअल फंड काम करता है, ठीक है। जस्ट गिव मी अ मिनट। आई होप सो आई एम नॉट बोरिंग यू। बोर हो रहा है क्या किसी को? In a very simple form, I am trying to explain you. Mutual fund. Mutual fund क्या होता है? Our money is being taken by a mutual fund, or our money, we invest our money into a mutual fund, and that mutual fund is being managed by the asset management company, AMC. There are various AMCs. Axis Bank भी एक AMC है, SBI म्यूचुअल फंड्स, एक्सिस बैंक म्यूचुअल फंड, ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड्स, ठीक है। अभी मेरा फिलहाल पैसा लगा है ICICI प्रूडेंशियल में, ठीक है। सो दीज आर दी वेरियस म्यूचुअल फंड्स, ये म्यूचुअल फंड्स है और इसको हम लोग असेट मैनेजमेंट कंपनी बोलते हैं। नाउ इन दिस असेट मैनेजमेंट कंपनी दे हैव देयर मेन ऑब्जेक्टिव्स, उनके कुछ करियर ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं कि उतना पैसा वो लोग क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर सेक्टर में लगाएंगे। सो हु मैनेजेस दी म्यूचुअल फंड? Fund managers, correct? Now how this mutual fund works? We are the investors. Our money will be pulled with the fund managers. हमारा पैसा कहाँ पे लगता है? Fund managers के पास जाएगा। Fund managers क्या करेगा? Securities में इन्वेस्ट करेगा। Now what are the securities? Debt. Major part is debt and equity. Debt मतलब क्या होता है कि like treasury bills, bonds. Do you know what is treasury bill, bonds? गवर्नमेंट को जब पैसा चाहिए रहता है ना, तो वो लोग क्या करते हैं, ट्रेजरी बिल्स और बॉन्ड्स इश्यू करते हैं, और कंपनी के लोग क्या करते हैं, वो ट्रेजरी बिल्स और बॉन्ड्स खरीदते हैं, एंड दे गेट अ फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न, 8%, 9%, 10% मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक फिक्स्ड रिटर्न मिलता है, मतलब इतना आपको रिटर्न नहीं मिलेगा डेप्ट में, बट डेप्ट इज सेफ कंपेयर टू इक्विटी। इक्विटी से बहुत सेफ हो जाता है डेप्ट, क्यों? क्योंकि आपको फिक्स्ड रिटर्न मिलने वाला है। यहाँ इक्विटी में क्या हो जाता है कि वहां पे आपको अलग अलग तरीके से इनकम होती है, एक डिविडेंड से, स्टॉक स्प्लिट, बोनस, कैपिटल अप्रिसिएशन, ठीक है। आइदर अ शेयर विल गो अप और डाउन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका मेजर पार्ट ऑफ द फंड इज इन्वेस्टेड इनटू डेब्ट एंड इक्विटी। अगर आपको रिस्क लेना है, आपका एज है 20-25, तो आप ऐसा सोच रहे हो कि लाइक हाँ सर मुझे इक्विटी के इसमें म्यूचुअल फंड में डालना है, तो आप क्या करोगे, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करके यू आर गोइंग टू पुट योर मनी इन म्यूचुअल फंड, एंड ऐसे म्यूचुअल फंड में डालोगे कि वो म्यूचुअल फंड क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ इक्विटी में इन्वेस्ट करता है। देयर आर वेरियस प्लान्स, आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट इट, मैं वो भी बताऊंगा आपको क्या है, ठीक है। तो कमिंग टू द टॉपिक हियर, सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया, दे विल जनरेट दी रिटर्न्स, हर साल वो लोग क्या करेंगे, रिटर्न्स जनरेट करेंगे। आफ्टर जनरेटिंग द रिटर्न्स दे विल पास बैक टू द इन्वेस्टर, वही क्या करेंगे वो लोग, पैसा रिटर्न कर देंगे। सर तो उनका क्या बेनिफिट? हम लोग हमेशा हम इंडियंस लोग है ना, पहले सोचते हैं कि सामने वाले का क्या बेनिफिट, हमारा पैसा हम लोग को इतना फ्री कोई आता है देने के लिए स्कीम, तो हम लोग पूछते हैं ना इसका क्या बेनिफिट, दिमाग लगाते हैं हम लोग। तो दे आर दी फंड मैनेजर्स, वो लोग हम लोग के लिए क्या चार्ज करते हैं, एक्सपेंस रेशियो चार्ज करते हैं अराउंड 0.3 to 1% ऑफ आवर होल्डिंग्स,
दे आस्क फॉर एग्जिट लोड। अगर आप एक साल के अंदर इन्वेस्टमेंट अपना निकाल रहे हो, मतलब मैंने एक एक्सिस ब्लू चिप मिड कैप फंड, एक्सिस ब्लू चिप मिड कैप फंड में मैंने म्यूचुअल फंड में मैंने 1 लाख रुपए डाल दिया। 1 लाख रुपए डालने के बाद मैंने उसको 12 महीने के अंदर अंदर ही उसको क्या कर दिया, विड्रॉ कर दिया। तो मेरे को एक्सपेंस रेशियो भी लगेगा और एग्जिट लोड लगेगा, क्योंकि आपने विद इन 1 ईयर क्या कर दिया है, एग्जिट लोड आपका विद इन 1 ईयर आपने विड्रॉ कर दिया। ठीक है, 2009 के पहले ना एंट्री लोड भी था, थोड़ा सा हिस्ट्री की बात कर ले। एंट्री लोड था, मतलब पैसा डालोगे तो भी आपको क्या लगेगा, चार्ज लगेगा। लेकिन सेबी ने क्या किया, वो हटा दिया, क्योंकि सेबी क्या करता है, दे आर जस्ट गवर्निंग। वो लोग क्या करते हैं, हमारे इन्वेस्टर्स की राइट को प्रोटेक्ट करते हैं। इसके लिए वो लोग ये सारी चीजें देखते हैं कि कंपनी कोई फ्रॉड ना करे, म्यूचुअल फंड्स कोई फ्रॉड ना करे और इन्वेस्टर्स के ऊपर ज्यादा बर्डन ना आए। सो देयरफॉर उन्होंने क्या कर दिया, 2009 में ये एंट्री लोड को हटा दिया। तो अभी सिर्फ क्या है हमारे पास, हमारा मैं आपको डिसएडवांटेजेस बता रहा हूं, एडवांटेजेस भी बताऊंगा, पहले डिसएडवांटेज बता रहा हूं कि आपको क्या लगेगा, एक्सपेंस रेशियो लगेगा 1 लाख के ऊपर 1% मतलब कितना हो गया, आई थिंक अराउंड 1000 रुपए हो गया, 1000 रुपीज। एग्जिट लोड विद इन 1 ईयर अराउंड 1% ये भी लगता है। और अगर आप 1 साल के अंदर अंदर पैसा निकालते हो, ठीक है, वट एवर द कैपिटल अप्रिसिएशन इज देयर, मतलब आपने 1 लाख रुपए का आपका हो गया 1,10,000, बराबर। आपने 1 साल पहले 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था, अब वो आप विड्रॉ कर रहे हो तो 1,10,000 हो गया। ठीक है, तो 10,000 इज एप्रिसिएशन। तो इस 10,000 के ऊपर आपको टैक्स लगेगा। आपको पता रहेगा डायरेक्ट टैक्स में हमारा एक पार्ट है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन्स के अंदर आपको 2 तरीके के कैपिटल गेन होते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपको जो रहेगा, मतलब विद इन 12 मंथ्स के अंदर अगर आपने पैसा निकाला और आपका अप्रिसिएशन हुआ है तो 10,000 रुपीज के ऊपर फ्लैट 15% आपको पे करना है। और अगर 1 साल के बाद निकालते हो तो वो आ जाएगा लॉन्ग टर्म के कैटेगरी में। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आपको अराउंड 15% आपको 10% आपको लगेगा चार्ज। वो हर साल चेंज होता है, हर साल हमारा बजट आता है, अभी बजट आएगा, ठीक है, तो उस बजट में कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है हमारे ऊपर। तो ये एक डिसएडवांटेज है, मतलब आपको एक अराउंड जो भी है, मतलब हाँ, अब मैंने आपको बताया टैक्स लगता है तो 10,000 रुपए समझो 10% लग गया सर, 1,000 रुपए तो मेरा ऐसे ही चले गया। तो आप टैक्स सेव कर सकते हो ना। आपको पता है कि इस पर्टिकुलर साल में मेरी इनकम नहीं है ज्यादा, तो चलो म्यूचुअल फंड में से विड्रॉ कर ले, थोड़ा सा अमाउंट विड्रॉ कर ले, थोड़ा अमाउंट करके आप बेनिफिट उसका ले सकते हो। तो वो तो टैक्स प्लानिंग एक अदर पार्ट हो गया, ठीक है, म्यूचुअल फंड से अलग है वो। ठीक है, सो दिस इज अबाउट दी डिसएडवांटेज। नाउ व्हाई टू इन्वेस्ट इनटू द म्यूचुअल फंड, तो क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए? सो इट इज यस। हाँ सर, क्वेरी था, अगर 1 साल से ज्यादा अगर हमने इन्वेस्टमेंट रखा वहां पे तो एग्जिट लोड अप्लाई नहीं होगा? फिर एग्जिट लोड नहीं अप्लाई होगा। कुछ म्यूचुअल फंड्स लेते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द म्यूचुअल फंड, टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड। कुछ लोग चार्ज भी करते हैं, कुछ लोग नहीं भी करते हैं। ठीक है, तो वो थोड़ा सा अभी भी उसके ऊपर ये नहीं आया है, स्टैंडर्ड एक प्रोसीजर नहीं आया है, तो वो आएगा तो उसमें भी हम लोग को पता चलेगा, जैसे मार्केट के बारे में आएगा। ठीक है, तो ये हो गया। एंट्री लोड तो है ही नहीं, ठीक है, खाली मैंने आपको एक नॉलेज के लिए बताया था, एंट्री लोड नहीं है। एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड एंड टैक्स। तो टैक्स सेव करना वो आपके ऊपर है, वो कैसे आप सेव कर सकते हो। अब ये मैंने डिसएडवांटेज बताया। एडवांटेजेस अगर देखा जाए तो इट इज अ प्रोफेशनली मैनेज्ड फंड। हमारे पास भी जितना एक्सपर्टीज नहीं रहेगा ना, उतना एक्सपर्टीज फंड मैनेजर के पास है। और फंड मैनेजर क्या ले रहा है, हार्डली 1% ले रहे हो, 1%, 2% पकड़ो। हम लोग को अगर वो 15% निकाल के देगा तो उसको 2% देने में क्या जाता है ना। एक लॉजिकल बात है, अगर वो मेरे को 15% निकाल के दे रहा है, मैं आपको बताऊंगा 15% भी सर, 15% कैसे, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, बताऊंगा उसको मैं क्या है। ठीक है, इट इज अ प्रोफेशनली मैनेज्ड फंड। डाइवर्सिफिकेशन दूसरा एडवांटेज। अब यहां पे एक एग्जांपल दूंगा। एमआरएफ का शेयर है 78,000 रुपीज का, एक शेयर। हम लोग बाय कर सकते हैं इतना बड़ा एक शेयर? ठीक है, कर सकते हैं करने के लिए, लेकिन रिस्क ज्यादा हो जाएगा ना, रिस्क फैक्टर बढ़ जाएगा, क्योंकि 1:1 का है यहाँ पे, 50% प्रोबेबिलिटी के वो नीचे जाएगा या तो ऊपर जाएगा। आइदर ऑफ द थिंग्स कैन हैपन। अभी तो बहुत नीचे गए, 4%, 5% नीचे गए। 5% सोच लो 78,000 का कितना होता है, तो हम लोग 1-2 दिन में डर जाएंगे, अरे बाप रे। तो यहाँ पे क्या होता है ना, म्यूचुअल फंड में क्या होता है, आपका जो अमाउंट है वो डाइवर्सिफाई हो जाता है। मतलब आप क्या करेंगे, अगर आप 1,000 रुपए लगा रहे हैं ना, तो अगर उस कंपनी के, उस म्यूचुअल फंड के इसमें होल्डिंग्स में एमआरएफ का नाम है, तो उस एमआरएफ में आपका 1,000 रुपए का सिर्फ 5% लगेगा या 10% लगेगा, तो समझो 100 रुपए आपका एमआरएफ में लगेगा।
सर तो ये एमआरएफ में लोग 100 रुपए कैसे लगाते हैं? तो इनके पास बहुत सारे लोग रहते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। देयर आर मेनी पीपल टू इन्वेस्ट। अभी मैं आपको एक खाली छोटा सा एग्जांपल देता हूं। एक छोटे से म्यूचुअल फंड है ना, उसका वैल्यू रहता है 5000 करोड़। छोटा बोला मैंने बड़ा 1 लाख करोड़ तक जाता है। 5000 करोड़ बोल रहा हूं, ठीक है? 5000 करोड़ आप सोच लो कितना बड़ा अमाउंट है। तो इतने लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो ये जो है ना, दे आर द, एक देखा जाए ना तो दे आर द बिग प्लेयर्स। म्यूचुअल फंड्स हो जाते हैं हमारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स शेयर मार्केट के, करेक्ट रखो, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो जाते हैं। तो जो बड़ा प्लेयर वो रूल करता है, जैसे राकेश झुंझुनवाला, हमारे इंडिया का वॉरेन बफेट बोलते हैं उसको हम लोग। तो वो क्या करता है, अगर कोई कंपनी में उसने पैसा डाल दिया तो उसके पीछे 10 लोग डाल देंगे पैसा। फिर उसको पता है कि मुझे अभी 10% रिटर्न मिल गया, वो निकाल देगा, पीछे जो लोगों ने इन्वेस्ट किया वो अटक जाते हैं। ऐसा होता है। तो म्यूचुअल फंड आर द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। सो ये लोग क्या करते हैं, हम लोग एक स्टेप आगे ही रहेंगे। इंडिविजुअली इन्वेस्ट करने से अच्छा म्यूचुअल फंड में पैसा डाला तो हम लोग एक स्टेप आगे है। क्यों? क्योंकि म्यूचुअल फंड के साथ चल रहे हैं हम लोग। वो मार्केट ऊपर जा रहा है, उन्होंने पैसा निकाल दिया तो हम लोग को वो रिटर्न निकाल के देंगे, ठीक है? तो ऐसा होता है, ठीक है? क्लियर है? अब रिटर्न पोटेंशियल की बात की जाए तो एक वन ऑफ द एडवांटेज है कि लाइक 1962 से 61 और 62, आई एम जस्ट कंफ्यूज विद द ईयर, 61 या 62 से जब ये म्यूचुअल फंड आया तब यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया फॉर्म हुआ था। और यूटीआई से मतलब उस साल से लेके अभी तक का आप अगर एवरेज रिटर्न निकालोगे, मतलब हर साल है ना म्यूचुअल फंड का एक रिटर्न्स निकलता है कि इस साल म्यूचुअल फंड ने 10% कमा के दिया, नेक्स्ट ईयर दूसरे साल में 12% कमा के दिया, तीसरे साल में 20% कमा के दिया। एक साल आया था बीच में जिसमें 31% रिटर्न दिया था। अब ये 2000 के साल में बीच में 31% रिटर्न दिया था। तो अगर इसका हम लोग एवरेज निकाले 1961 से लेके आज तक अगर एवरेज निकाले इसका, तो अभी तक 14% का एवरेज है। 14%, मतलब जिसने 1961 से अगर का पैसा लगाया तो उसको 14% का रिटर्न जनरेट हुआ है, ठीक है? अब म्यूचुअल फंड का जो रिटर्न्स है वो कैसे जनरेट होता है? तो वो होता है कंपाउंडिंग के बेस पे, ठीक है? वो भी एक अगला पार्ट, एक लास्ट का पार्ट बाकी है, वो भी मैं कवर करूंगा। थोड़ा सा मैं एडवांटेजेस पे आगे फोकस करता हूं। लो कॉस्ट ड्यू टू इकोनॉमीज ऑफ स्केल। एक बड़ा एडवांटेज मिलता है हम लोग को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए कि एक तरीके का लो कॉस्ट हो जाता है। क्यों लो कॉस्ट? अगर मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करूं, एक शेयर खरीदूं तो मुझे डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। डीमैट अकाउंट ओपन करने के बाद वो मेरे से ब्रोकरेज चार्ज करेगा, तो छोटे छोटे लोगों से ब्रोकरेज चार्ज करेगा, तो ज्यादा पैसा जाता है यहाँ पे। फंड मैनेजर क्या करता है, एक ही साथ इन्वेस्ट करता है, ब्रोकरेज भी उनको कम रहता है क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो उनका रहता है। तो हम लोग को यहाँ पे क्या हो जाता है कि हम लोग को चार्ज एक्सपेंसेस है वो कम लगता है, ठीक है? ओवरऑल कोई भी चीज होलसेल में खरीदने जाओगे तो कम में ही मिलेगी ना, रादर देन बाइंग इन रिटेल शॉप, ठीक है? तो ये एक फायदा होता है। ट्रांसपेरेंसी रहती है, हम लोग को हर एक दिन एवरी डे यू विल गेट द अपडेशन इन द म्यूचुअल फंड। अगर आपने आज अभी रिसेंटली मैंने 3000 रुपए डाला म्यूचुअल फंड में तो वो हो गया 2900, ठीक है? अभी आप बोलेंगे सर आप तो अभी रिटर्न्स की बात करो 15%, 20%, ठीक है? आपका 3000 से 2900 कैसे हो गया? तो अभी मार्केट डाउन है। जब मैंने इन्वेस्ट किया था 3000, मैंने 3000 क्या किया है, एसआईपी में इन्वेस्ट किया, तो यहाँ पे 3000 से 2900 हो गया। तो मुझे कोई डर नहीं लगने वाला है। क्यों? क्योंकि मैं 10 साल के लिए इन्वेस्ट करने वाला हूँ। हर साल हर महीने में 3-3 हजार रुपए इन्वेस्ट करने वाला हूँ। तो क्या होगा, कभी मार्केट डाउन रहेगा तो मेरा यहाँ पे कम मार्केट डाउन में मेरा उतना 3000 लगेगा, तो कम इसमें लगेगा, फिर धीरे धीरे करके एवरेज करके वो ऊपर आता है अल्टीमेटली, ठीक है? तो उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है? तो ये एडवांटेजेस है हमारे म्यूचुअल फंड के। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स मुझे बताने हैं, ठीक है? जैसे हम लोग शेयर मार्केट में एक स्टॉक की प्राइस कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि उसकी अगर फेस वैल्यू 10 रुपए है तो आज एमआरएफ की समझो शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपए और एमआरएफ का मार्केट प्राइस है 78,000, ठीक है? पर शेयर मतलब एक पार्ट का हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक हिस्से का हम लोग को वैल्यू पता है। यहाँ पे कोई भी शेयर अगर ले लो, आईआरसीटीसी का लोगे तो 875 चल रहा है, सीजी पावर लोगे तो 190 चल रहा है, सुजलॉन एनर्जी लोगे तो 14 रुपए चल रहा है, यस बैंक लोगे तो 13 रुपए चल रहा है, ऐसे हम लोग को पता है। वैसे ही म्यूचुअल फंड्स का भी क्या रहता है कि यूनिट वाइज वो डिवाइडेड रहता है। जैसे यहाँ पे शेयर बोलते हैं, यहाँ पे हम लोग यूनिट बोलते हैं। अब यूनिट कैसे कैलकुलेट होता है म्यूचुअल फंड का, दैट आई वांट टू टेल यू, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये आपको क्लियर हो गया? आपको कोई भी डाउट रहेगा तो यू कैन आस्क प्लीज। ओके, तो कैसे कैलकुलेट होता है ना, उसके पहले एक टर्म समझ लेते हैं, नेट असेट वैल्यू।
सो नेट असेट वैल्यू क्या होता है? इट इज अ टोटल असेट वैल्यू पर यूनिट ऑफ द फंड कैलकुलेटेड बाय असेट मैनेजमेंट कंपनी। मतलब एएमसी क्या करता है ना, एक पर यूनिट का वैल्यू निकालता है जिसको हम लोग बोलते हैं एनएवी। ठीक है, जैसे शेयर बोलते हैं कंपनी के लिए, वैसे यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं? एनएवी, जो यूनिट में कैलकुलेट करते हैं। वहां पे शेयर को शेयर प्राइस से कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे नेट असेट वैल्यू से कैलकुलेट करते हैं हम लोग। अब ये होता कैसे कैलकुलेट है? ठीक है, तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक स्कीम है, एक कंपनी है, चलो नाम ही लिख लेता हूं मैं, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड्स। ये एक म्यूचुअल फंड है जो एक आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, वो इसको ऑपरेट करती है। ठीक है, तो उसकी स्कीम की जो साइज है वो है 50 करोड़ साइज। ठीक है, अभी फिलहाल साइज उसकी कितनी है? 50 करोड़। फेस वैल्यू कितना है उसका? एक का कितना वैल्यू है? मतलब जब उन्होंने स्कीम लॉन्च किया था ना, तब एक यूनिट का वैल्यू कितना था? 10 रुपए। कितना था? नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हो जाएंगे अभी आपको पता चल जाएगा। नंबर ऑफ यूनिट्स 50 करोड़ का फंड वैल्यू है, एक यूनिट का कितना है? 10 रुपए। तो कितने नंबर ऑफ यूनिट्स हो जाएंगे? 5 करोड़ यूनिट्स होंगे ना। 5 करोड़ इंटू 10 इज 50 करोड़। 5 करोड़ यूनिट्स आपके पास अवेलेबल है। मतलब आपको बाय करना है तो ये बोलेगी कि शिवानी बोलेगी सर मेरे को 2 यूनिट बाय करना है, तो 2 यूनिट आप बाय करोगे 20 रुपए में। टोटल फंड की वैल्यू 50 करोड़। क्लियर हो गए हैं? 5 करोड़ यूनिट्स। ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट है, बराबर ध्यान देना। इनका मेन ऑब्जेक्टिव है सिर्फ और सिर्फ इक्विटी स्कीम में, इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं। सब आपको क्लियरली मेंशन किया जाएगा, मैं आपको प्रैक्टिकल भी बताने वाला हूँ पार्ट। इन्वेस्टमेंट किस में करते हैं सभी लोग? इक्विटी में करते हैं। ठीक है, अब इसका क्या हो गया ना, एक साल के बाद इसका जो मार्केट वैल्यू है कितना हो गया? 75 करोड़। 75 करोड़। स्टार्टिंग में कितना था? 50 करोड़। इन्होंने वो पैसा कहां पे लगाया? शेयर मार्केट में, इक्विटी में लगाया। और क्या हो गया? कितना बन गया? 75 करोड़ डिवाइड बाय कितने यूनिट से? एनएवी कितना हो जाएगा आपका? 15 रुपए एक यूनिट का हो जाएगा। मतलब अगर आपने 10 रुपए के हिसाब से अगर 10 यूनिट खरीदे होते तो 1000 रुपए डाला होता तो आज वो 1500 हो जाता था। एक साल के बाद कितना रिटर्न हो गया? 15%। करेक्ट ना? 50%। सॉरी, ठीक है, तो इतना रिटर्न, मतलब इतना मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इतना रिटर्न नहीं होता है एक साल में। 50% रिटर्न नहीं होता है, 15 से 20% रिटर्न होता है। ठीक है, 15 to 20%। अभी कोविड के टाइम पे मैंने जब इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया 500 रुपीज पर मंथ एसआईपी, तो 43% रिटर्न दिख रहा है उसका। क्यों? क्योंकि कोविड में मार्केट डाउन था, तब दैट वाज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट। गोल्डन। ठीक है, अगर डाल दिया रहता पैसा तो बहुत अच्छा खासा रिटर्न आता, लेकिन तभी किसी के पास पैसा ही नहीं था ना। सीधी सी बात है, तभी पैसा भी तो नहीं था। ठीक है, अब बात करेंगे कि हम लोग म्यूचुअल फंड में पैसा किस फॉर्म में लगा सकते हैं। ठीक है, वेज टू इन्वेस्ट। एसआईपी एंड लमसम। लमसम क्या होता है कि एक साथ आपने पैसा डाल दिया। तो ये मनस्वी के पास बोलते हैं सर आता जमीन विकली 10 लाख रुपयात माझा करे सर, काय करू सर? मला एक काम कर, 10 लाख रुपयात ना 10 म्यूचुअल फंड मध्ये टाक। कितना रिस्क डायवर्सिफाई हो गया? 10 और उसके अंदर और 10। 10 म्यूचुअल फंड मध्ये टाक, 1-1 लाख करून टाक, हो गया रिस्क डायवर्सिफाई आपका। ठीक, तो ये हो गया लमसम। अब एसआईपी क्या होता है? मनस्वी तो जाम पैसा अपन छोटे मोठे लोग हैं, तो 1,000 रुपये, जैसे की तन्वी बोलते सर माझ्याकडे 1,000 रुपये महिन्याचे काढू शकते सर, मी कमावते आता, माझी 10,000 पगार आहे सर, 1,000 रुपये मी म्युच्युअल एसआईपी मध्ये टाकणार। तो शी विल स्टार्ट विथ एसआईपी। तो हर मंथ या हर क्वार्टर में, इट डिपेंड्स ऑन यू, आपको कैसे इन्वेस्टमेंट करना है। हर मंथ आप क्या करोगे? 1,000 रुपये डालते जाओगे। क्या करोगे? 1,000 रुपीज आप डालते जाओगे। तो हर मंथ वो डालते जाएगी, तो एक पर्टिकुलर टाइम आएगा, ठीक है, जब
पावर ऑफ कंपाउंडिंग, द 8 वंडर ऑफ द वर्ल्ड, मैं उसको बोलता हूँ 8 वंडर ऑफ द वर्ल्ड, वो काम करना शुरू करेगा। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूँ, वॉरेन बफेट की जो इनकम है ना, वॉरेन बफेट बचपन से इन्वेस्ट करता है, बचपन से इन्होंने इन्वेस्टमेंट करना चालू किया, और उनकी इनकम है ना 50 के एज के बाद जो बढ़ना स्टार्ट हुई, कांट इवन इमेजिन, इतना रैपिड 100 टाइम से इनकम बढ़ना चालू हुई, क्योंकि उतना वो उस तरीके से काम करता है। सर को आइडिया है, सर मैथ्स के, इसमें मैथ्स के सर है, वहाँ पे मैथ्स पढ़ाते सर, उनका खुद का क्लासेस है। तो यहाँ पे इस तरीके से पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम करता है, उसके बारे में बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, तो आपको एसआईपी और लमसम समझिए। ठीक है, आई एम विद द टाइम ना, टाइम कितना हो रहा है? ठीक है, मेजर टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। तो दो मेजर टाइप होते हैं म्यूचुअल फंड की, एक होता है ओपन एंडेड स्कीम, दूसरा होता है क्लोज एंडेड स्कीम। ओपन एंडेड स्कीम में क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, कि आप कभी भी बाय और कभी भी सेल कर सकते हो। मतलब मैंने, मनस्वी ने 1 लाख रुपए डाल दिया, ठीक है, वो बोली सर मला पैसे काढायचे, you can take out the money anytime, after 1 day also you can take out the money, that is the open ended scheme. close ended scheme, आपने पैसा डाला तो एक लॉक इन पीरियड रहता है उसका, ठीक है, 2 साल 3 साल एक पर्टिकुलर रहता है उसका म्यूचुअल फंड का, तो वो 2 साल 3 साल तक आप पैसे नहीं निकालोगे। ठीक है, टैक्स एक फंड रहता है, मतलब ये ओपन एंडेड स्कीम बता दिया। फिर उसके बाद रहते हैं कि टैक्स के रिलेटेड स्कीम रहती है, मतलब हमको हमारा अगर टैक्स सेव करना है तो हम लोग उस म्यूचुअल फंड में डालेंगे जहां पे ज्यादा टैक्स सेविंग हमें मिलता है। ठीक है, देन हाइब्रिड इक्विटी ओरिएंटेड और ग्रोथ ओरिएंटेड स्कीम, मतलब आपने उस म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया, आपका वो म्यूचुअल फंड कंपनी क्या करेगी, सिर्फ और सिर्फ इक्विटी मतलब शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेगी पैसा। डेब्ट और इनकम ओरिएंटेड स्कीम, तो आपका जो पैसा है म्यूचुअल फंड, जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, वो पैसा आपका सिर्फ कहां पे लगेगा, सिर्फ डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स में लगेगा, जैसे कि ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट डिपॉजिट, मतलब वो इन सारे चीजों में इन्वेस्ट होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे आपको एक फिक्स % का रिटर्न मिलता है। देन हाइब्रिड और बैलेंस स्कीम, आधा पैसा इक्विटी में, आधा पैसा डेब्ट में, हर तरीके का फ्लेक्सिबिलिटी, आपको जिधर इन्वेस्ट करना है कर सकते हो, आपके ऊपर है। ठीक है, देन आ जाता है गिल्ड फंड्स, सिर्फ और सिर्फ आपका गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में पैसा लगाती है म्यूचुअल फंड, गिल्ड फंड बोलते हैं उसको हम लोग। देन आ जाता है इंडेक्स फंड। ठीक है, तो इंडेक्स फंड के लिए मुझे थोड़ा और बताना पड़ेगा कि इंडेक्स फंड में क्या होता है, कि जो हमारे शेयर मार्केट के इंडेक्स है, बहुत सारे अलग अलग इंडाइसेस होते हैं जिसके बेस पे हमारा शेयर मार्केट, मतलब हम लोग को पता चल रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो इंडाइसेस रहते हैं जैसे कि निफ्टी 50, ठीक है, आपने सुना रहेगा, सेंसेक्स, तो उस इंडाइसेस में वो लोग पैसा लगाते हैं म्यूचुअल फंड। ठीक है, तो अगर आपका इंडेक्स बढ़ेगा, सेंसेक्स बढ़ रहा है, तो क्या होगा, आपको रिटर्न मिलेगा, कम होगा तो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वो और रिस्की रहता है वहां पे। ठीक है, सो दिस इज अबाउट दी टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। ठीक है, ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड बताया। अब एक छोटा सा पार्ट बाकी है, ठीक है, कि एक्सिस आपको समझ गया, एसेट मैनेजमेंट कंपनी कौन हो जाएगी, एक्सिस बैंक है यहाँ पे। म्यूचुअल फंड आपको समझ गया, सर ये मिड कैप क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक होता है लार्ज कैप, एक होता है मिड कैप, एक होता है स्मॉल कैप। पहली 100 कंपनी लार्ज कैप, दूसरी 100 से 250, मतलब दूसरी 150 कंपनी मिड कैप, और तीसरी 250+ कंपनी स्मॉल कैप। सर ये तो आपने हम लोग को उसका ऑर्डर बताया, क्या होता क्या? लार्ज कैप कंपनी वो कंपनी होती है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 70,000, 60 या 70,000 करोड़ से ऊपर रहता है, मतलब उसका मार्केट में पैसा 70,000 करोड़, 70,000 करोड़ रुपीज। मतलब फॉर एग्जाम्पल MRF और रिलायंस का एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, तो रिलायंस की शेयर प्राइस है 200 कुछ 2700 है, और MRF की 78,000 कुछ है। ठीक है, एक अप्रॉक्स वैल्यू बताया। कौन सी कंपनी बड़ी है? रिलायंस बड़ी है। रुक जाओ, कौन सी कंपनी बड़ी दिख रही है वैसे? शेयर प्राइस में तो अरे 78,000 का यहाँ पे शेयर प्राइस है, मतलब कंपनी यही बड़ी रही। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ शेयर प्राइस,
हम डिटरमाइन इस तरीके से कर सकते कि उनकी नंबर ऑफ शेयर्स मार्केट में कितने हैं। अगर इसके फॉर एग्जांपल सिर्फ 100 ही शेयर है और इसके 1 लाख शेयर है तो मार्केट कैपिटलाइजेशन में बड़ी कौन सी कंपनी है? रिलायंस है ना, ठीक है, और है एक्चुअल में रिलायंस ही कंपनी बड़ी, ठीक है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मार्केट कैपिटलाइजेशन फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला है कि करंट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड टू द पब्लिक। ये मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा? मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब मार्केट कैपिटलाइजेशन मिल जाएगा आपको, उसके बाद आपको आइडेंटिफाई करना लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप। तो लार्ज कैप कौन सी कंपनी जिसका 70,000 करोड़ के ऊपर मार्केट कैपिटलाइजेशन है, ठीक है। ये 20 to 70,000 करोड़ में फॉलो किए मिड कैप, और बिलो 20,000 करोड़। आई होप सो इट्स क्लियर नाउ। सर इंडेक्स फंड्स के बारे में आप थोड़ा और बताएंगे? इंडेक्स फंड में मतलब म्यूचुअल फंड में बोल रहे हो या स्टॉक मार्केट में? म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में कैसा रहता है? इंडेक्स फंड कैसा होता है? इंडेक्स फंड आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है? लाइक निफ्टी 50 है, ठीक है। ये किसके अंडर आती है? NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। हमारे इंडिया में 2 मेजर स्टॉक एक्सचेंज है, एक एनएससी और एक बीएससी। BSE। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ये एक इंडाइसेस फॉर्म हुआ है, मतलब आपको पता करना है कि मार्केट कैसा चल रहा है, तो निफ्टी 50 को देख के आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, मतलब टॉप 50 कंपनीज, ठीक है। हर साल उसको ऊपर नीचे चेंज किया जाता है, कोई अच्छी कंपनी परफॉर्म करे तो वो निफ्टी 50 के अंदर आ जाएगी, कोई अच्छा परफॉर्म नहीं करता निफ्टी 50 से निकाल देते हैं, उसको रिप्लेसमेंट होता रहता है। तो एक निफ्टी 50 है ना, एक तरीके का फॉर्मूला अप्लाई करके वो लोग क्या करते हैं, निफ्टी 50 का इंडाइसेस बना के रखे हैं। अभी जो चल रहा है ना निफ्टी 50 कुछ अराउंड 18,000 चल रहा है, ठीक है। ये फॉर्मूला वो लोग, उनका एक कैलकुलेशन रहता है, वो कैलकुलेशन के हिसाब से वो लोग का एक 18,000 है। तो हम अगर इंडेक्स फंड में, म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हम अगर इंडेक्स फंड में पैसा लगा रहे हैं तो प्योरली हमारा म्यूचुअल फंड में जो पैसा है वो कहां पे लगेगा? इस इंडाइसेस में लगेगा। तो निफ्टी 50 ऊपर तो हमारा म्यूचुअल फंड में जो पैसा हम लोग को रिटर्न्स है वो रिटर्न्स मिलेगा, नीचे तो फिर रिटर्न्स नहीं मिलेगा। तो ये प्योर रिस्क ही रहता है, ठीक है। तो हर महीने का हम लोग उसमें थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो कभी म्यूचुअल निफ्टी 50 कम रहेगा तो हमारा कम, जब मार्केट है कम मार्केट नीचे है तो हमारा पैसा लग रहा है, फिर बाद में मार्केट कभी ऊपर गया तो हमारा और पैसा लग रहा है। हम लोग एसआईपी में इन्वेस्ट कर रहे हैं अगर इनकेस, तो वैसे करके फिर वो एवरेज होते जाता है। फिर अल्टीमेटली आपको लग रहा है कि सर हमारा आंचल बोलती है सर हमारा देश तो प्रोग्रेस करेगा। मेरे को तो नहीं लगता है कि टाटा कंपनी बंद होगी, मेरे को लगता नहीं कि रिलायंस बंद होगी। बंद होगी क्या? बंद होना का लार्सन एंड टुब्रो बंद होगा क्या? नहीं होगा। ये कंपनी नहीं बंद होने वाली। और हम लोग के यूथ, हमारा एक बोलते हैं ना, एक कुछ सालों के बाद सबसे ज्यादा यूथ हमारे कंट्री में रहेंगे, तो वो लोग काम तो करेंगे ना, काम चोर तो नहीं लगते हम लोग को, काम तो करेंगे। काम करेंगे तो कंपनी में काम करेंगे, अच्छी बड़ी कंपनी है। आईटी सेक्टर देखो, टीसीएस है, इंफोसिस देखो, ठीक है। तो ये बड़ी बड़ी कंपनीज है, विप्रो देखो, ठीक है, भारतीय एयरटेल देखो, जियो देखो, ठीक है। ये सब बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज है, बंद नहीं होने वाली है। तो आंचल को लगता है सर आज निफ्टी 18,000 पे है, तो मुझे लगता है कि वो आराम से 30,000 जाएगा पिछले 5 सालों में। तो यू आर जनरेटिंग द रिटर्न। आपको आपकी कंट्री पे, हमको हमारे कंट्री पे भरोसा है कि नहीं? होना ही चाहिए, होना ही चाहिए, और है भी, क्योंकि वो परफॉर्म करने वाला है। आपका यहाँ पे शेयर मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करोगे, मैंने एक बड़ा अमाउंट डाल दिया है, ठीक है। एक दिन डाला मैंने अमाउंट, इनको पता है मैंने कितना अमाउंट डाला। अमाउंट डालने के बाद सीधा नीचे आया दूसरे दिन। तो मुझे कोई डर नहीं है, क्यों? क्योंकि ये फ्लक्चुएशन, ये सब छोटे मोटे लोगों के लिए, ट्रेडर्स लोगों के लिए सब फ्लक्चुएशन काम आते हैं। हम इन्वेस्टर्स है, हम इन्वेस्टर्स को 1 साल के बाद देखने का, वो देखने का भी नहीं, उसको काम ज्यादा क्या हो रहा है देखना ही नहीं है। 1 साल के बाद मुझे पता है कि मेरा 1 लाख का सीधा 1.5 लाख हो जाएगा या 2 लाख हो जाएगा। तो 1.5 लाख भी हो तो कितना रिटर्न हो गया? 50% रिटर्न हो गया शेयर मार्केट में। बट म्यूचुअल फंड में आपको एक 15% रिटर्न मिलता है, क्योंकि आपका पोर्टफोलियो क्या है? डाइवर्सिफाइड। क्लियर विद द इंडेक्स फंड। तो सर वो टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट होता है ना? टॉप 50 कंपनीज में, मतलब टॉप 50 कंपनीज में नहीं, इंडाइसेस में, उस इंडेक्स में होगा, मतलब जो टॉप 50 रहेगी उसमें इन्वेस्ट होगा। क्लियर? तो ये मैंने आपको बता दिया लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। अब यहां पे कुछ टाइप्स छोटे से बाकी है, थोड़ा सा बता देता हूं मैं। इक्विटी में ना मल्टी कैप बोलते हैं, मल्टी कैप।
एक्सिस मल्टी कैप फंड, तो आपका 65% है ना इक्विटी में लगेगा, बाकी का 35% आपका डेप्ट में लगेगा। ठीक है, एक कुछ रेशियोज मैंने निकाले हैं, ठीक है, नेट पे से। लार्ज कैप बोला तो लार्ज कैप में आपका 80% आपका क्या लगेगा, लार्ज कैप कंपनीज में लगेगा इक्विटी में। सिर्फ मैं इक्विटी की बात कर रहा हूं, सिर्फ इक्विटी के इसमें ही कंपनी म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करेगा। लार्ज कैप बोला तो लार्ज कैप कंपनी में 80% लगेगा, बाकी का बचाओ 20% मिड कैप स्मॉल कैप में लगेगा। मिड कैप बोला तो मिड कैप में 65% लगेगा, बाकी के स्मॉल कैप और लार्ज कैप में बचा हुआ 35% लगेगा। स्मॉल कैप बोला अगर स्मॉल कैप फंड है तो 65% स्मॉल कैप में। आई वुड सजेस्ट यू दैट आप हो सके तो लार्ज कैप और मिड कैप में ही पैसा म्यूचुअल फंड में लगाओ, स्मॉल कैप में मत लगाओ, क्योंकि पेनी स्टॉक्स जो होते हैं ना उसका भरोसा नहीं होता है, क्योंकि वो लोग क्या है ना सब डेप्ट पे चलने वाली कंपनी है। ठीक है, जिसका डेप्ट नहीं होता ना जिस कंपनी का, वो बहुत पैसा कमाती है। जैसे कि कोविड में ना, कोविड के टाइम पे 2 साल में, ये पिछले 2 साल की बात करूंगा मैं, बड़ी कंपनीज और बड़ी हो गई और छोटी कंपनीज बंद हो गई। क्यों? क्योंकि बड़ी कंपनीज के पास उनके पास डेप्ट नहीं था, उनको हर महीने का बैंक को ब्याज नहीं भरना है। और छोटी कंपनी जो थी ना वो ब्याज भरते भरते, कोविड था, इतनी खराब सिचुएशन थी, कंपनी बंद थी, प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहा था, बंद पड़ेगा। तो इसके लिए हो सके मेरा एक सजेशन है, एकदम आपको प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूँ, हो सके तो लार्ज कैप मिड कैप में डालो। मिड कैप भी क्या है, मिड कैप भी कभी लार्ज कैप बन सकता है। स्मॉल कैप में 100% में से 15% चांसेस रहते हैं कि वो स्मॉल कैप मिड कैप बनेगी, फिर बाद में लार्ज कैप बनेगी। ठीक है, लेस चांसेस रहते हैं। और ये जो स्मॉल कैप कंपनीज होती है ना, ये बड़े बड़े प्लेयर से ही ऑपरेट होता है। मतलब बड़ा प्लेयर अगर उसने इन्वेस्ट किया है तो वो अपना पैसा निकाल के उस कंपनी को गिरा भी देगा। ठीक है, तो वो हम लोग उसमें नहीं जाने चाहिए, ऐसा मेरा बोलना है। अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो एक ही पॉइंट बोलूंगा मैं कि आपको ऑफर डॉक्यूमेंट पढ़ना चाहिए म्यूचुअल फंड का, उनके क्या इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द म्यूचुअल फंड। अगर आपको कुछ डाउट पूछना है तो पूछ सकते हो। आप लोगों को मैं एक ऐप का लिंक भेजता हूँ, आपको ऐप डाउनलोड करो, ग्रो ऐप। उसमें आप डाउनलोड करने के बाद आपको मैं एक छोटा सा 5 मिनट का पार्ट बताऊंगा कि किस तरीके से इन्वेस्टमेंट किया जाता है। ठीक है, वो एक बता दूंगा। तब तक आपको मैं एक लिंक भेज देता हूँ। ठीक है, मेरा फोन उधर ही है ना, स्टॉप कर दो, चलेगा, इनफ हो जाएगा।